Okay, so good morning once again. So today we have to discuss one of the important topic of seismic phases. Okay, so before going to seismic phases, we need to understand what are the body waves. Okay, so first tell me what is seismic waves. Anybody? Seismic waves. So waves generating from the seismic activities. So Waves generating from seismic activity. Okay. So you can simply say that simply these are nothing but the energy, okay, that can travel through the layers of the earth. Okay, waves are nothing but the energy that can travel through the layers of earth. Energy that can travel through the layers of earth. Okay, now energy which is traveling through layers of the earth, they are nothing but seismic waves. Okay, now what are the reasons before for generation of the seismic waves? The reason behind the generation of the seismic waves. Anybody? काफी बेसिक चीजें है. वेव्स कैसे जनरेट होती है? सी यू नीड टू इंटरैक्ट. ओके, मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ. Earthquake, volcanic activities, यस, अर्थक्वेक्स. mag- magma movement and landslides. करेक्ट. ओके, सो अर्थक्वेक्स, देन मैग्मा मूवमेंट, वोल्केनिज्म, आर्टिफिशियल कॉजेस, एक्सप्लोजन्स, छोटे मोटे. कई बार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए ब्लास्ट की जाते हैं, ब्लास्ट इन माइनिंग. ओके, so all these artificial activities are responsible for generation of these seismic waves. Okay, now these waves divided into two main types. One is body wave and another one is surface waves. ठीक है, हमें एक्चुअली दूसरा टॉपिक सीखना है, सीज्मिक फेजेस और रे पाथ्स और नॉमेनक्लेचर. ओके, but before to understand that topic you need to know about some basic things. Okay, you need to know about waves, concept of waves. Okay, their propagation directions. So ये हम पहले फाउंडेशन बना रहे हैं because so many people are new. I don't know उनको सब कुछ आता है या नहीं आता है. Okay, so that is the reason. So body waves, why we are saying body waves and surface waves. Okay, so you all, many people already know that the body waves are divided into two waves, P wave and S wave. Okay, now tell me why they are called as body waves. Because they travel to the interior of the earth. Yes, they travel through the interior of the earth or the body of the earth, hence they are called as body wave. Then we have surface waves. Okay, जिसे आज हमें काम नहीं, हम काम के नहीं है. Okay, but surface waves include relic waves and love wave. ओके, तो फिलहाल हमें इनका काम नहीं है तो हम इस पे फोकस नहीं करेंगे. We need to focus on P and S waves. Okay, so now these waves are traveling through the interior of the earth. They are called as body waves. Okay, now P waves is also called as primary wave. S wave is also called as secondary wave. Okay, P wave is also longitudinal. Okay. Now longitudinal means
So if we draw this diagram, अगर एक ऐसे डायग्राम ड्रॉ करो तो कुछ इस तरह से वो मूव होगी. Okay, this is longitudinal. Means particle motion is parallel to the direction of wave. Particle motion is parallel to direction of wave. Clear? यहाँ तक एनी डाउट? ओके, लॉन्जिट्यूडनल मतलब ऐसी ऐसी मूव करेगी. ठीक है, मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. सो दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल बिहेवियर ऑफ P wave. Now S wave, also called as secondary wave, okay, and it is transverse in nature. Transverse means, let's say, like this. मतलब ये एक्सिस है, ओके, हॉरिजॉन्टली मूव करेगी. No, direction of you can say particle motion is transverse direction of wave propagation. Particle motion is transverse to direction of wave propagation. Okay, so clear? Longitudinal मतलब आपको imagine करना है, it is moving vertically, and for horizontal it is transverse. Okay, clear? Any doubt यहाँ तक? No, sir. Okay. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. So this is about the body waves, P and S waves. Okay, now topic is seismic path. Okay, seismic path or phases, or you can say ray nomenclature. Ray nomenclature. Okay. Ray nomenclature. Okay. So now, what is seismic path? What is path? Okay. So seismic phase is nothing but, you can say, a path followed by seismic wave. Okay, inside the earth. Path followed by seismic wave inside the earth. Okay, this is your seismic path. Now, why we are getting different seismic path? Okay, now this relation is depends on the change in velocities. Okay, now you know there is a change in velocity inside the earth. Okay, so let's say inner core, outer core, and this is your mantle. Okay, this is your mantle. This is inner core, this is your outer core. Okay, and thin layer above the mantle is your crust. Okay, तो ये crust है जिसे मैंने दिखाया, वो एक thin layer. You can imagine, okay, red layer of apple.
इतनी थिन क्रस्ट है बाकी के कंपैरिजन में. ओके, सो now we have variation in velocities. Variation in velocities, okay, of P and S wave inside the earth. Why we are getting different velocities in different layers? Anybody? Because of discontinuities. सिर्फ डिसकंटिन्यूटीज की वजह से मिल रही है? नहीं, तो डिसकंटिन्यूटी में ऐसा क्या हो रहा है कि वेलोसिटी कम या ज्यादा हो रही है? सर मीडियम चेंज सर. यस, सर मीडियम चेंज सर, मतलब डिफरेंट मटेरियल में सर डिफरेंट वेलोसिटी होगी सर. या मैं वही बोल रहा हूँ कि डिफरेंट लेयर्स में वेलोसिटी बदल रही है, तो ऐसा हमें क्या मिल रहा है, क्या चेंज हो रहा है कि वेलोसिटी बदल रही है? Composition of the core यस, mantle. द मेन रीजन इज डेंसिटी. ओके, और डेंसिटी क्यों बदल रही है? बिकॉज कंपोजिशन बदल रहा है. ओके, so all three things are interrelated, we can say. So we are getting variation in velocities due to change in densities and variation in composition. Okay, so what are the composition then? Okay, major element in crust हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन है, we have silicon, okay, then aluminium. So these are the major composition of the crust. Then if we go to mantle, हम जा नहीं सकते, but evidences के basis पे बोल रहे हैं. Okay, we have olivine plus pyroxene. ठीक है, and what we have in core? In core we have iron plus nickel. Okay, so this is एक overall basic composition. Okay, now you have a basic idea about the composition of the layers of the earth, why we are getting variation in velocities of body waves. Okay, because डेंसिटीज बदल रही है. अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी और घटेगी. लेट्स कंसीडर एग्जांपल फॉर पीवी. एनीबॉडी? सी, आज पहले सब लोग अगर कोई नींद में होगा तो एक एक झपड़ मारो खुद को और थोड़ा अटेंटिव रहो. ठीक है, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो कंसेप्चुअल है, थेरेटिकल नहीं है. अभी तक हमने जो क्लास किए वो थेरेटिकल थे. ठीक है, जिसमें आपको रीड करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, ठीक है, और समझना पड़ता है, थेरेटिकल था. आज का जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो आपको सोचना पड़ेगा. ओके, लॉजिकल है, यू नीड टू थिंक ओवर द टॉपिक. और हर बार मैं क्वेश्चन करूंगा तो ट्राई टू आंसर. तो जितना आप अटेंटिव रहोगे उतना अच्छा है. ओके, तभी समझेगा, अदरवाइज वो बोरिंग लगेगा. ठीक है, बट जब कंसेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, पर समझे तो, नहीं तो वो बोरिंग ही लगे. ठीक है, और नाउ थोड़ा सा जियोफिजिक्स से रिलेटेड है. ठीक है, अब जियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो हमको सब कुछ आना चाहिए. यू नीड टू बी सुपरमैन. ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते. आपको फिजिक्स भी आना ही चाहिए, आपको केमिस्ट्री भी आना ही चाहिए, आपको मैथ्स भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, और ये सब आता है उसके बाद आप जियोलॉजी पढ़ो. ठीक है, तब आप सुपरमैन बनोगे और तभी अच्छे स्कोर आएंगे. ठीक है, तो जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी, ऑल दिस आर दी बेसिक थिंग्स. ओके, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. नाउ एक क्वेश्चन पूछा था. ओके, अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी क्या होगी? कम. कम होगी. क्यों? एनी रिलेशन? सर डेंसिटी अगर उसमें बढ़ती है तो उसमें मॉलिक्यूल उतना कॉम्प्रेस होगा, मतलब कॉम्प्रेस होगा, जिसके कारण जो स्पीड है उसको जाने को मतलब टाइम लगेगा ना, तो उसकी वजह से वेलोसिटी डिक्रीजेस होगी ना सर? नहीं. ठीक है,
velocity increases in hard rock. अच्छा, Because of जितना डेंस रहेगा, जितना हार्ड रॉक रहेगा, उतनी वेलोसिटी को ट्रैवल करने में आसानी होगी. फॉर एग्जांपल अगर लिक्विड आता है तो वेलोसिटी पी वेव की डिक्रीज हो जाएगी. ओके, बिकॉज प्रोपगेशन में डिफिकल्टी आएगी. ओके, सो दिस इज अबाउट द बेसिक थिंग. अब आते हैं मेन टॉपिक पे. ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, थोड़ा सा पी वेव और एस वेव के बारे में समझा. ओके, देन उसके नेचर के बारे में जानने की कोशिश की. ठीक है, कि पी वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल, एस वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. लॉन्जिट्यूडनल मतलब ऐसी वर्टिकली प्रोपोगेट हो रही, यू कैन इमेजिन. ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टली प्रोपोगेट हो रही है. ओके, देन हमने एक बेसिक आइडिया ले ली. डिटेल में तो बाद में देखेंगे, डिटेल टॉपिक्स में. ठीक है, कंपोजिशन क्या है. ठीक है, नाउ कोर, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल. मेंटल भी डिवाइडेड होता है, लोअर मेंटल, अपर मेंटल. ओके, एंड उसके अबो हमारे पास क्रस्ट है. ओके, सो बेसिक कंपोजिशंस क्या है ये देख लिया. डेंसिटी के साथ वेलोसिटी कैसे वेरी करती है वो देख लिया. नाउ बिकॉज वी आर हैविंग वेरी different densities of different layers, along with that because of the densities we are getting different velocities. तो इसके वजह से जो वेरिएशंस आएंगे वो वेरिएशंस नथिंग बट योर सीज्मिक पाथ और सीज्मिक फेसेस. तो these are the reason behind the variable or different seismic path. Okay, या seismic phases. Now अब ये हमको पता कैसे चलेंगे. ओके, सो मेनी पीपल नो अबाउट द सीस्मोग्राम एंड सीस्मोग्राफ. ओके, जिन्होंने अर्थ पे पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में उनको पता है. नाउ अब इन दोनों में से इंस्ट्रूमेंट कौन सा है. seismograph. ओके, सीस्मोग्राफ इज योर इंस्ट्रूमेंट. अच्छे से ध्यान में रखना, सब लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं. ग्राफ लिखा है तो ऐसा ये ग्राफ होगा, ऐसा नहीं. जिसमें ग्राफ लिखा है वो इंस्ट्रूमेंट है, एंड सीस्मोग्राफ, ग्राम जिसमें लिखा है वो आपका एक्चुअल ग्राफ है. ओके, तो जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं, ऑल डिफरेंट वेरिएशंस आर you can observe on this seismograph. Okay, like this, इस तरह से कुछ. Okay, so on this seismogram you can come to know about the variations in the layers. Okay, clear. See Balbir, there are various reasons, okay, behind the discontinuities, and we have many discontinuities inside the earth. Some discontinuities due to variation in composition, change in layer, change in composition, change in densities. Okay, यहाँ तक कोई डाउट. Okay, now हेडिंग बनाओ, टर्मिनोलॉजी. नाउ हम एक प्रकार का नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं. ओके, तो नॉमेनक्लेचर में किसको क्या बोलना है ये डिफाइंड होता है. ओके, जैसे इफ यू आर, हमारे बड़े, हमसे बड़ा है कोई, तो आप क्या बोलोगे, भैया, सर, कुछ ना कुछ तो बोलोगे, लाइक दिस. सो वेव्स को हमें पहले टर्मिनोलॉजी सीखनी है. ओके, देन हम एक्चुअल टेक्निक पे जाएंगे. तो इसमें हम दो लेटर्स का यूज करते हैं, एक है अपर केसेस और एक लोअर केस. ओके, तो जब हम कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे, मतलब अपर केस, ओके, तो अपर केस डिनोट होगा वेव्स के लिए जो लेयर्स के थ्रू ट्रैवल कर ले. अपर केस डिनोट, यहाँ लिख देता हूं मैं, ट्रैवल थ्रू
the part of earth, और लोअर केस का यूज करना है जब लोअर केस डिनोट्स रिफ्लेक्शंस फ्रॉम बाउंड्रीज, reflections from boundaries, reflections from boundaries. ओके, मतलब जब भी वेव बाउंड्री से किसी लेयर से रिफ्लेक्ट होगी उस केस में हम स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे. ओके, और जब विदाउट रिफ्लेक्शन वो पास हो रही है, लेयर्स किसी लेयर से मूव कर रही है, उस केस में हम अपर केसेस का यूज करेंगे. ओके, so we need to use upper cases when any wave travel through a particular layer. Okay, and you need to use lower cases or small letters in case of reflections from the boundaries. Clear? Now अगर let's say p wave पास हो रही है, okay, मेंटल से, so हम कैपिटल p का इस्तेमाल करेंगे, p wave in मेंटल. ठीक है, ध्यान दो प्रॉपरली. ठीक है, एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो रहा है, कंफर्म क्वेश्चन जियोलॉजी का. ठीक है, जो गेट में कंपल्सरीली आता है, जैम में कभी कभी आ सकता है. नो, पी वेव इन मेंटल. ठीक है, कैपिटल पी का इस्तेमाल करोगे जब पी वेव मेंटल से ट्रैवल करेगी. ओके, देन कैपिटल के का इस्तेमाल करना है व्हेन पी वेव ट्रैवल इन आउटर कोर, P wave in outer core. Okay, you need to use capital I in case of P wave in inner core. Inner core. Okay, then you need to use capital S when S wave travel in the mantle. Then J. S wave in the inner core. Clear? इतने ही लेटर है. देन छोटा सी, स्मॉल, लोअर केस. ओके, स्मॉल सी, रिफ्लेक्शन of the core mental boundary. रिफ्लेक्शन ऑफ द कोर मेंटल बाउंड्री, CMB लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में. ओके, तो स्मॉल सी यूज करेंगे. देन स्मॉल आई इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द inner core boundary. Reflections of the inner core boundary. Clear? एक रहेगा PDIFF. ओके, P वेव जो डिफ्रैक्ट हो रही है. ओके, अब P वेव that has been diffracted around the outer core boundary. P wave that has been diffracted around the outer core boundary. ठीक है, नाउ इसमें बेसिक चीज क्या समझनी है? यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ओके, और
जैसे रिफ्रैक्शन होता है सिमिलर डिफ्रैक्शन भी रहेगा, ठीक है, डिफ्रैक्ट हो जाना। क्लियर? सो इसको याद करना है, ठीक है। 1 मिनट है आपके पास, एक बार रीड करो अच्छे से, इसको लर्न कर लो। ओके, कैपिटल P इन केस ऑफ P वेव इन मेंटल, कैपिटल K P वेव इन आउटर कोर, देन कैपिटल I P वेव इन इनर कोर, S वेव कैपिटल S वेव इन मेंटल, J S वेव इन इनर कोर, C स्मॉल c रिफ्लेक्शन, मतलब कोर मेंटल बाउंड्री से जब रिफ्लेक्शन होगा तो C यूज करना है, एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम इनर कोर तो हम स्मॉल I यूज करेंगे, ठीक है। और जब P वेव डिफ्रैक्ट होगी तब P डिफ्रैक्ट P DIFF ऐसा यूज करेंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट अब आते हैं एक्चुअल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सो ये मैंने इनर कोर ड्रॉ किया, दिस इज योर आउटर कोर, ये है मेरा मेंटल, ओके। और ये जो थिन लेयर है यही आपकी क्रस्ट है, ठीक है। तो एक प्रकार से हम एक क्रस्ट को यहाँ इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। इग्नोर नहीं कर रहे, ये थिन लेयर क्रस्ट है, बिकॉज कंपैरिजन टू अदर लेयर्स क्रस्ट बहुत ही थिन है, ओके। वी हैव ओनली 30 अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर क्रस्ट, ओके, एंड बिलो द माउंटेन्स मैक्सिमम 70 किलोमीटर। कर बाकी लेयर्स की थिकनेस देखोगे तो थाउजेंड्स में है, ओके, कंपैरिजन टू दिस। सो बाउंड्री इज नथिंग बट योर क्रस्ट। सो ये आपका हो गया कोर, ओके। सो अगर आई एम इमेजिनिंग यहाँ पे एक सोर्स है हमारा, दिस इज योर सोर्स, ठीक है। लेट्स से अर्थक्वेक आ रहा है एट पॉइंट S, ओके, या फिर हम आर्टिफिशियल एक्सप्लोजन कर रहे हैं या एनी अदर कॉज जो सीज्मिक वेव को जनरेट करेगा, ओके। तो अगर यहाँ से वेव्स जनरेट होती है तो जो बॉडी से ट्रेवल करेगी, ओके, तो कौन सी वेव ट्रेवल करेगी? P और S वेव, ठीक है, बॉडी वेव्स है। अब जब P और S वेव ट्रेवल करेगी तो हम उसकी पाथ को स्ट्रेस करते हैं, ओके। तो लेट्स से यहाँ से P वेव निकलती है, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, आई विल यूज ब्लू फॉर P वेव, ओके। सो अगर यहाँ से P वेव निकली और वो यहाँ तक पहुंची, क्लियर? तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? P वेव ट्रेवलिंग थ्रू मेंटल, ये क्या है आपका? मेंटल है, ठीक है, ये आपका मेंटल है, ये आपका आउटर कोर है, ये आपका इनर कोर है, क्लियर? सो P वेव ट्रेवल थ्रू मेंटल, तो हम क्या यूज करते हैं लेटर? कैपिटल P, करेक्ट, वी यूज कैपिटल P। सो P वेव इज ट्रेवलिंग थ्रू मेंटल, तो हमने यूज किया कैपिटल P, तो ये पाथ हो गई सिर्फ P, ओके। अब मान लो यहाँ से ये पाथ फिर से यहाँ तक आई, नाउ इन दिस केस ये पाथ को क्या नाम दोगे आप? PP, समझ में आ रहा? क्योंकि दो बार P क्यों आया? बिकॉज 2 times
दैट वेव इज ट्रेवलिंग थ्रू मेंटल। क्लियर? बाउंड्री को टच करके एक बार, इसलिए फर्स्ट टाइम पी, दूसरी बार पी पी। क्लियर? यहां तक समझा? नाउ अगर फिर से यहाँ पे पहुंची तो अब मैं क्या नाम दूंगा? PPP. PPP। क्लियर? तो इस तरह से हमें नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, ये तो सिंपल हो गई। नाउ slowly will increase the little bit complexity. Now second, P wave आई यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से वो यहाँ पे आए और यहाँ से यहाँ पे आए। नाउ इस कंप्लीट पाथ का नाम क्या रहेगा? PKI. सी फर्स्ट, पी वेव सोर्स से निकली, कहाँ से ट्रेवल किया? पी वेव ट्रेवल थ्रू मेंटल, मतलब क्या आएगा सबसे पहले? पी वेव ट्रेवल थ्रू मेंटल, पी यूज करेंगे, कैपिटल पी। देन क्या हो रहा है? पी वेव ट्रेवल थ्रू आउटर कोर, उसके बाद वो डिफ्रैक्ट होकर आउटर कोर में आई। क्लियर? अब जैसे ही आउटर कोर में आती है तो क्या नाम बजाएगा? पी वेव इन आउटर कोर डिनोटेड बाय Capital K. कैपिटल के। करेक्ट? सो पी के। नाउ अगेन पी वेव इज इन मेंटल। नाउ इफ पी वेव ट्रेवल थ्रू मेंटल तो क्या आएगा? Capital P, P. again capital P. So the path, name of this path is PKP. Clear? किसको नहीं समझा? करेक्ट? क्लियर? PKP. Okay. Then okay. P वेव यहां तक आई, ठीक है, देन यहाँ पे आई, देन थ्रू इनर कोर यहाँ और यहाँ। नाउ टेल मी द नेम ऑफ दिस पाथ, क्या होना चाहिए? So PKIKP. P यहाँ पे, ठीक है, P वेव इन मेंटल, देन P वेव इन आउटर कोर क्या है? K, तो K आया, K इसके लिए। देन P वेव इन इनर कोर, P वेव इन इनर कोर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? I से। सो P K I। देन फिर से P वेव कहाँ पे आ गई? आउटर कोर में। आउटर कोर के लिए क्या यूज करते हैं? K। देन P वेव कहाँ आ गई? फिर से मेंटल में, P। सो P K I K P। करेक्ट? एनी डाउट? क्लियर? ओके, ठीक है। सी, अब वीडियो तो ऑन नहीं है काफी लोगों के, तो मुझे समझता ही नहीं है, ठीक है, कोई कर भी रहा है या नहीं है, तो एटलीस्ट यस नो अनम्यूट करके या चैट में रिप्लाई देके, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे समझे भी कि आप सच में कर रहे हो, जम रहा है। ओके, सो एटलीस्ट रिप्लाई इन मैसेज, ओके, और से यस नो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट। सर यस, ये पी वेव्स प्रोड्यूस कैसे होगी सर? ये जो सोर्स दिखाया है, इस सोर्स पे या तो अर्थक्वेक आया है, या फिर हमने कोई एक्सप्लोजन किया है, या कोई लैंडस्लाइड आ सकती है, या फिर वोल्केनिज्म हो सकता है। तो सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज क्या करेगी? एनर्जी को ट्रिगर करेगी, और वो एनर्जी जो ट्रैवल करती है उसी को हम सीस्मिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? सीस्मिक वेव्स को ही डिफाइन किया। व्हाट इज सीस्मिक वेव्स? सबसे पहले मैंने लिख के दी डेफिनेशन, एनर्जी दैट ट्रैवल थ्रू लेयर्स ऑफ अर्थ। ओके, और उसमें भी हमने सिर्फ बॉडी वेव्स को कंसिडर कर रहे हैं,
बिकॉज बॉडी वेव्स, क्यों बॉडी वेव्स बोल रहे हैं उसको, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग थ्रू द लेयर्स ऑफ द अर्थ, इसलिए हम पी और एस वेव की ही बात करेंगे। ओके, बिकॉज द अदर पार्ट जो है सरफेस वेव्स, वो सिर्फ क्रस्टल लेवल पे ट्रेवल करेंगे। ठीक है, उस पर हम सबसे आखिरी में आएंगे, क्योंकि क्रस्ट भी छोटी है एज कंपेयर टू अदर लेयर्स, बट 35 किलोमीटर हमारे लिए बहुत बड़ा है, तो उसमें भी वेव्स ट्रेवल करेगी, तो वो हम देखेंगे पर आखिर में देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक एनी डाउट क्लियर? अच्छा, ओके, पर यूज करता हूँ। एक बात आई, यहाँ से यहाँ पे आई, यहाँ से यहाँ। Now tell me the name of this path, orange path. ठीक है, जो लोग काफी नए हैं, थोड़ा सा मुझसे डरते वगैरह होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, और जिनको डर नहीं लगता, मैं खाने वाला तो हूँ नहीं, तो वो बोल सकते हैं। ठीक है, यो का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीबॉडी, क्या रहेगा? व्हाट शुड बी द आंसर? PKP पी KP ए, पूरा तो बोलो। सब PKP पी के पी। हाँ अभी देखो, लेट्स सी। ओके, सबसे पहले हम फिलहाल पी वेव की बात करें। ओके, सो पी वेव इन मेंटल, तो क्या यूज करेंगे? कैपिटल पी, करेक्ट। देन पी वेव कहाँ पे आई? आउटर कोर में, क्लियर। सो पी वेव इन आउटर कोर क्या आएगा? कैपिटल के। नाउ दिस पी वेव इज टचिंग द इनर कोर, और वहां से वो रिफ्लेक्ट हो गई, क्लियर। अंदर नहीं गई, इनर कोर में पेनिट्रेट नहीं किया, वो सिर्फ वहां से रिफ्लेक्ट हो गई। सो अगर कोई बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है, तो मैंने बोला था आपको क्या यूज करना है, स्मॉल लोअर केसेस सी और आई। तो वो बाउंड्री कौन सी है? इनर कोर की और आउटर कोर की। ओके, सो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इनर कोर बाउंड्री मीन्स स्मॉल आई, सो पी के स्मॉल आई। Okay, now the P wave is again in the outer core. So again K, and now P wave is again in the mantle. So again P. So P K I K P. Yes, Baldev. Yes, Aniket. Correct. समझ में आया? Okay, you need to understand this concept clearly. Okay, because when we solve objective question based on this concept, वहाँ पे आपको ये diagram दिया नहीं रहेगा. Okay, you will only have the description about the particular condition or the wave traveling through different layers, and based on that information you need to solve your objective, okay, or to choose appropriate answer. तो वहां आपको ये डायग्राम दिया नहीं रहेगा, ये आपको समझ के दिमाग में रखना है, ओके, और उसके बेसिस पे यू नीड टू आंसर. आफ्टर दिस टॉपिक आई विल डिस्कस 4 to 5 ऑब्जेक्टिव सो दैट यू कैन कोरिलेट, है ना, मतलब अब सीख तो गए, तो लॉजिक को अप्लाई कैसे करोगे व्हाइल सॉल्विंग एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ओके, अंडरस्टूड? यहाँ तक एनी डाउट? ओके, नाउ बात करते हैं एस वेव की. सो क्लियर, दूसरी डायग्राम में बना लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा. इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, ये हमारा सोर्स है. नाउ आई एम यूजिंग ग्रीन कलर फॉर एस वेव. ओके, सो लेट्स से यहाँ पे आया,
तो क्या नाम रहेगा? एस एस वेव इन मेंटल। क्लियर? ओके, देन यहां से मैंने रेड यूज किया, ठीक है। नाउ रेड कलर इज डिनोटिंग द पी वेव। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एस पी और एस पी पी। ओके, नाउ बिफोर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कन्वर्शन कंसेप्ट। ओके, अब आपको सबसे बड़ा एक आपने चीज पढ़ी होगी, एस वेव कैनॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड। ओके, अब एस वेव लिक्विड से ट्रेवल नहीं हो सकती। और अगर आप ग्राफ देखोगे एक्चुअल में, ओके, इफ यू सी द ग्राफ, पी वेव लिक्विड है, ठीक है, मेंटल का कुछ पार्ट लिक्विड है, वहां से ट्रेवल नहीं कर सकती। आउटर कोर लिक्विड है, वहां से ट्रेवल नहीं कर सकती, सॉरी एस वेव। ओके, पर इनर कोर की जब बात आती है, वो सॉलिड है, तो वहां पे आपको एस वेव फिर से दिखती है। क्लियर? सो इफ वेव अगर मेंटल से ट्रेवल नहीं कर पा रही है, आउटर कोर से ट्रेवल नहीं कर पा रही है, तो वो इनर कोर तक पहुंची ही कैसे? ठीक है, क्लियर? मतलब वेव वहां पे है, पर गई कहाँ फिर? सो इट इज एस वेव। जब वो लिक्विड से ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो वो क्या करेगी? वो स्प्लिट हो जाएगी। ओके, स्प्लिट हो जाएगी दोनों प्रोपगेशन डायरेक्शन में, वन इज लॉन्जिट्यूडनल एंड अदर वन इज ट्रांसवर्स। सो ट्रांसवर्स नेचर जो है वो टिपिकली एस वेव का है, तो जो ट्रांसवर्स वेव है वो लिक्विड से ट्रेवल नहीं कर पाएगी, बट जो लॉन्जिट्यूडनल कंपोनेंट रहेगा एस वेव का, वो ट्रेवल करेगा। ओके, और नाउ लॉन्जिट्यूडनल कंपोनेंट इज नथिंग बट योर पी वेव, तो उसको हम इंस्टेड ऑफ एस पी वेव बोल देंगे। क्लियर? क्योंकि उस समय आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बिकॉज पी को भी हमने कैसे डिस्टिंग्विश किया है? उसके लॉन्जिट्यूडनल बिहेवियर से। और नाउ इन द लिक्विड एस वेव इज सेपरेटेड इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज ट्रांसवर्स एंड वन इज लॉन्जिट्यूडनल। तो वो जो लॉन्जिट्यूडनल कंपोनेंट है वो सिमिलर रहेगा पी वेव से, तो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश। ओके, क्लियर? तो उसको भी हम पी वेव बोलते हैं। तो जब लिक्विड की बात आएगी एस वेव में, तो वो पी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो वहां पे हम पी वेव्स यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने एक वेव यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है। तो जहां जहां मैं रेड यूज करूंगा, वहां आपको समझना है कि वो पी वेव में कन्वर्ट हुई है, तो वहां पे आप पी वेव के कन्वेंशन यूज करोगे। और जहां ग्रीन यूज करूंगा, वहां पे वो एस वेव के कंपोनेंट्स। ओके, तो इसलिए वो पाथ क्या बनी? एस, देन एस पी, देन एस पी पी। करेक्ट? लेट्स से ये वेव यहां से यहां पे आती, तो अब इसका नाम क्या रहेगा? नाउ टेल मी। SS. एस एस, करेक्ट। क्लियर? ओके, नाउ tell me the name of this path. SCS. Correct. S C, small c. Okay, SCS. Why? ये आपका इनर कोर, ये आपका आउटर कोर, एंड दिस इज योर मेंटल। ओके, सो C क्यों आया? रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी कोर मेंटल बाउंड्री। ओके, कोर मेंटल बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी, इसलिए स्मॉल c। क्लियर? SCS। करेक्ट?
नेक्स्ट। Now name this path. S. Balbir is saying SKS. Mansi is saying SKS. Okay. Correct है? Ketki, is it correct? Yes, sir. Okay, see this. S wave in mental. क्या यूज करोगे? S. Now S wave जो कि आउटर कोर लिक्विड है कन्वर्ट होगी पी वेव में, इसलिए मैंने रेड से इंडिकेट किया. ओके, सो पी वेव इन आउटर कोर क्या रहेगा? K. Now again it is converted into S wave in mental, so SKS. Correct? Now name this path. SKKS. SKKS किसने कहा? Is it correct? Yes, Aditya. यस सर. क्या रहेगा नाम? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना थोड़ा. ये मैंने पाथ ड्रॉ की, दिख रही है? विच वन सर? ये वाली. आई एम ओवर राइटिंग. ओके. यस सर. सर आउटर कोर टू दैट्स आउटर कोर. समझ में आई पाथ? यस सर. now इसका नाम बताओ. ग्रीन कलर क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? सर मेंटल वेव, मेंटल में एस वेव. एस वेव. एस वेव इन मेंटल. तो एस Mental. वेव इन मेंटल के लिए क्या सिंबल यूज करते हो? पी. पी सिंबल हम पी वेव के लिए यूज करते थे. एस एस. एस. हाँ, तो सबसे पहले मैंने लिखा एस. नाउ Yes. योर एस वेव आउटर कोर में आ गई जो कि पी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि एस वेव लिक्विड से ट्रेवल नहीं करती, आउटर कोर लिक्विड है. ओके, इसलिए मैंने Okay. रेड से इंडिकेट किया. जो जो चेंज वेरिएशन है वो मैंने कलर से इंडिकेट किया है यहाँ. ओके, सो अब वो पी बन गई. सो नाउ पी Yes. वेव इन आउटर कोर, तो क्या यूज करोगे? विच लेटर? के यूज करोगे. सो मैंने के यूज किया. नाउ अगेन एक बार वो बाउंस हुई. ओके, मतलब 2 बार ट्रेवल कर रही है, तो मैंने फिर से के यूज किया. Okay. करेक्ट. नाउ अब वो मेंटल में आ गई है और फिर से ग्रीन कलर दिख रहा है, मतलब कन्वर्ट हो गई एस वेव में. तो अब क्या यूज करोगे? एस वेव इन मेंटल. S. एस.
तो क्या बन गया एस के एस, करेक्ट। समझ में आया? समझा क्या? Yes, sir. अभी तो तुम एस को पी बोल रहे थे। सर ध्यान नहीं था। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि थोड़ा रिप्लाई करते जाओ। गलत हुआ तो क्या होता, कोई इशू नहीं। अब इतने लोगों में से हर एक को मैं टारगेट करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा कुछ ना कुछ सबका नंबर आएगा। क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस? इरेज करूं? Okay. Now we'll try to understand same concept with diagrams. Okay, with different diagrams. Now see this. ओके अभी हमने जो सब ड्रॉ किया वो यही था। क्लियर? आई विल शेयर दिस पीडीएफ, डोंट वरी। ठीक है, तो इसमें सारी पाथ दी गई है। नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग एस वेव, ओके, एंड डार्क ब्लैक लाइन इज रिप्रेजेंटिंग पी वेव। Okay, on the basis of that you can name the path. Okay, so यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है जो हमको समझना है। ओके, सो नाउ सी, यहाँ पे जो सोर्स था, ओके, सी दिस इज योर सोर्स। नाउ ये जो सोर्स है ये आपकी बाउंड्री पे नहीं है। क्लियर? ओके, सो लेट्स से यहाँ से देखो एक पाथ निकली है यहाँ तक। ओके, देन वो ऐसी आई। क्लियर? सो जब ये सोर्स जो है आपका बाउंड्री पे नहीं रहेगा, इन दैट केस सबसे पहले आप, मतलब ऐसी लेयर है यहाँ पे आपका सोर्स है, दिस इज योर सोर्स। सो नाउ वेव इज ट्रेवलिंग फर्स्ट टू सरफेस लाइक दिस। तो इन दैट केस यू नीड टू यूज स्मॉल पी बिकॉज दैट इज पी वेव। पी वेव की बात करें तो पहले स्मॉल पी यूज करो। नाउ दैट वेव इज ट्रेवलिंग इन मेंटल। ओके, सो नाउ यू कैन यूज कैपिटल पी, पी वेव इन मेंटल। करेक्ट? जैसे ही वो आउटर कोर पे पहुंच रही है वहां से वो रिफ्लेक्ट हो गई। नाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम आउटर कोर, और यू कैन से कोर मेंटल बाउंड्री। ओके, सो क्या यूज करोगे? सी। ओके, सो यहाँ पे आ गए वो पी पी सी, एंड अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू मेंटल, सो पी। So name of this path will be PPCP. क्लियर? समझ में आया? Okay, now see here in case of S, see here यहाँ पे dotted line है, this is dotted line. Okay,
सो सोर्स से यहाँ से डॉटेड लाइन थी. So for dotted line, okay, we use small s. After reflection, वो डार्क लाइन बन गई, मतलब पी वेव में कन्वर्ट हो गई. ओके, तो इन दैट केस वी नेम इट एज एस पी. एस छोटा, पी बड़ा. ओके, नाउ अगेन दैट पाथ or wave is converted into S wave. Now it is represented by dotted line. Now you can name it as small s p s. See here. समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझा है? सर ये स्मॉल पी एंड स्मॉल एस वो थोड़ा डाउट लग रहा. ठीक है, स्मॉल लेटर्स कब यूज करना है? जब आपका सोर्स बाउंड्री पे नहीं है. ओके, और वहां से वेव जो है वो ऊपर जा रही है तो. ओके, और वहां से वो नीचे आती है तो कोई इशू नहीं है, नॉर्मल कन्वेंशन. फिर इसलिए मैंने जो ऊपर गई हुई बात है उसका आपको दो एग्जांपल, एक वन एग्जांपल फॉर पी वेव एंड वन एग्जांपल फॉर एस वेव आपको बताया. क्लियर? बाकी इसमें आपको स्मॉल लेटर्स नहीं दिखेंगे. क्लियर? एक बार फिर से बताता हूँ. ओके, नो इशू. Now see here, this is your source. Okay, indicating with red dot. यहां से ऊपर गया पहले. ओके, सो नाउ कंसिडर दिस इज पी वेव, तो मैंने क्या यूज किया? स्मॉल पी. दिस इज स्मॉल पी. ओके, नाउ ये कहां से गई? मेंटल से. ओके, सो पी वेव इन मेंटल, तो मैंने बड़ा पी यूज किया. तो स्मॉल पी, बड़ा पी, देन मेंटल कोर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुई तो मैंने सी यूज किया, और अगेन पी वेव इज इन मेंटल तो मैंने फिर से पी को यूज किया, तो मेरी ये बात बन गई. क्लियर? पी पी सी पी, करेक्ट. नाउ अगेन द सेम पाथ इज कन्वर्टेड इनटू डॉटेड लाइन. यू कैन सी हियर. See, this is dotted line. So dotted line means क्या इंडिकेट कर रहा है? S wave. Correct. So now my path is see P P C P. अब ये S में कन्वर्ट हो गई तो मैंने यूज किया S. ओके, नाउ S में कन्वर्ट हो गई. S wave in mental, so I am using S. Now it is again converted into P inside the fluid outer core. One time and again two time. दो बार बाउंस हुई. ओके, सो दो बार बाउंस हुई तो मैंने क्या किया? एस वेव इन फ्लूइड आउटर कोर इज डिनोटेड बाय के, सो दो बार के लिखा. नाउ अगेन इट इज इन द सॉलिड मेंटल. डार्क लाइन है मतलब वो पी वेव है, सो कैपिटल पी. क्लियर? सो पी छोटा, देन बड़ा पी, सी पी, एस के पी. सो दिस इज माय, this is the name for my entire path. Clear? समझ में आया? स्लोली स्लोली थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी में मैंने बढ़ाते जा रहा हूँ. क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस?
Clear? Okay, then next. Okay. Now here we'll see shadow zone. What is shadow zone? इस particular zone, okay, जिसमें waves detect ही नहीं होगी due to their refraction. Okay, so here you can see in this particular zone no p wave is detected. Okay, यहाँ पे एक भी p wave नहीं आएगी, वो या तो इधर मिलेगी या तो इसके ऊपर मिलेगी. Okay, so in particular zone if no p wave is detected, तो ऐसी zone को हमने बोल दिया है p wave shadow zone. Okay, एक basic idea के लिए. Clear? Any doubt? Okay. Now this particular degrees होती है. Okay, from 103 degree to 143, book to book vary करती है. In many books you may find 102 to 142 degree. Okay, so इसमें प्लस माइनस 2 डिग्री का डिफरेंस लेके चलो. ओके, फॉर एस वेव शैडो जोन, सॉरी फॉर पी वेव शैडो जोन, एंड फॉर एस वेव शैडो जोन क्या रहेगा मानसी? फॉर एस वेव शैडो जोन 103 टू लेकर 180. ओके, means in this particular region no S wave is detected, that is S wave shadow zone, and this particular region no P wave is detected, that is P wave shadow zone. Okay, okay. फर्स्ट नाउ क्रस्ट की बात करते हैं. ओके, so we have little different terminology, little bit for S wave, sorry, for in case of crust. Okay, let's say I am drawing here. This is your mantle. Okay, and this is your crust, and crust mantle boundary. Okay, क्या होती है crust mantle boundary? Moho. Okay, Mohorovicic discontinuity. So now any wave, okay, let's say if P wave is traveling through mantle, sorry, crust. Okay, like this. उसको हम डिनोट करेंगे PG से, P and small g. Okay, P wave turning within the crust. So PG, P wave turning within crust. Yeah. Now let's say ये P wave आपकी यहाँ पे आई और ऐसे चलेगी. Okay, you can denote this path as PMP. Means P wave reflecting
of moho. P wave, P capital, P wave reflecting of moho. Okay, and now let's say P wave आई मोह तक और मोह से अंदर चली गई. Okay, so in that case we will represent this wave as Pn. P बड़ा, N छोटा. P wave traveling in uppermost mantle. Clear? So now in case of S क्या हो जाएगा? जहां जहां हमने P यूज किया है वहां वहां हमको S यूज करना है. ओके, तो वहां पे आपको SG, SMS ऐसे हो जाएगा. क्लियर? So this is about the different terminology for S wave in case of crust. ठीक है, और जो पहले देखा that is about mantle. Okay, paths for P and S wave in mantle and core. Clear? Now we'll try to solve some objective question based on this concept. मिटा दो इसको. Now let's see some questions, okay, based on this concept. So first question, which one of the following phases is P wave that convert to S wave during passage through the solid inner core? Anybody? Aditya is saying option 1. Okay, कितने लोगों को लगता है ये सही है? Balbir is saying 2. Ritesh is saying B. Okay, और कोई लोग? बाकी लोग है ना कि सो गए? ओके, तो ये डेमो है तो आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन. क्लास चालू होने दो, मैं आपको कैमरा ऑन करने को लगाऊंगा. ओके, Ketki is saying B, Nidhi is saying A. So now first tell me why you are saying option A. A क्यों लग रहा है आपको? यस निधि, 2 लोगों ने ये आंसर किया. निधि है ना अनिकेत? नहीं अनिकेत नहीं, सॉरी आदित्य. Why A?
ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि डायग्राम आपको गिवन नहीं रहेगा, वो आपको इमेजिन करना है, एंड based on that diagram, if you know the concept very well, you can easily answer this question. Okay, now गलती क्या कर रहे हैं, p wave that converts to s wave. अब p wave शुरू हुई तो कहाँ से शुरू हो गई, मेंटल से शुरू होगी, करेक्ट। तो सबसे पहले मेंटल से शुरू हुई, लेट्स से, तो मेंटल में p wave को हम क्या बोलते हैं, p. Okay, then p wave that converts to s wave during passage through solid inner core, मतलब इनर कोर तक जा रही है वो। ओके, सो इनर कोर से जाने से पहले वो कहाँ से पास होगा, आउटर कोर से, बराबर है। नाउ p वेव इन आउटर कोर क्या बोलेंगे, k, करेक्ट। नाउ अभी बोला है कि p वेव दैट कन्वर्ट टू s वेव ड्यूरिंग पैसेज थ्रू सॉलिड इनर कोर। ओके, मतलब वो कोर में s वेव बन गई है, ऐसा उनका कहना है। p wave that convert to s wave during passage through solid inner core. So p wave while traveling through inner core, it is converted into s wave. So in case of inner core, आपको क्या देखना है, s wave in inner core, क्योंकि अभी जो p wave थी वो inner core में s wave में कन्वर्ट हो गई है। तो s wave in inner core किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल J, करेक्ट। तो इसलिए हमने क्या यूज किया, J, बराबर। अब ये इनर कोर खत्म, अब इनर कोर से वो जैसे ही निकलेगी फिर से कहाँ पे आएगी, मेंटल में, तो वापस P बन जाएगी, क्योंकि वो S में कन्वर्ट हुई थी सिर्फ इनर कोर में। तो आउटर कोर में वापस P बन जाएगी, तो फिर से आउटर कोर, P वेव इन आउटर कोर K, देन अगेन P वेव इन मेंटल इज P. So P K J K P. So option B is the correct answer. Clear? 5 to 6 लोगों ने आंसर किया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ यही लोग ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट, उसमें से 2 ने गलत किया, ठीक है। तो जिन 2 लोगों ने गलत किया उनको क्लियर हुआ, क्लियर आदित्य, निधि, एनी Yes, sir. डाउट, निधि? यस सर। ओके, और जिन्होंने आंसर ही नहीं किया, या तो उनको समझ नहीं रहा या तो वो सोए हैं, तो उसमें से कोई पूछो मुझे क्या नहीं समझा है, एनीबडी? जब नाम नहीं लेते तब तक क्यों बोलेंगे, ऐसा है। Okay, next question. Now try to solve this. जब कोशिश करोगे तभी तो आएगा। ओके, which one of the following seismic phases is the earliest arrival in the P shadow zone? आप सब सीख गए, पर क्वेश्चन को देखो, सीखने के बावजूद भी आपको सोचना पड़ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे कि पाथ ड्रॉ करो, नाम बताओ, पूछ भी सकते हैं पर वो बहुत इजी हो जाएगा, थोड़ा सा तो कुछ देना पड़ेगा उनको कंफ्यूज करने के लिए। नाउ सी हियर, यू नीड टू थिंक ओवर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ट्रिकी होते हैं। ओके, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT जैम और IIT गेट, ओके, और UPSC, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। तो ऐसे ही नहीं आ जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ओके, उतना हार्डवर्क तो लगता ही लगता है, और अगर आपसे नींद ही नहीं खुलेगी फिर तो हो गया।
किसी को नहीं जम रहा? अब गेस करो मोस्ट पॉसिबल आंसर क्या होता है, क्या हो सकता है। नाउ एक क्वेश्चन सबके मन में आया होगा, अर्लीस्ट अराइवल इन द पी वेव शैडो जोन बोला है, करेक्ट। और अभी हमने पी शैडो जोन को डिफाइन किया, a particular zone from 103 degree to 142 degree, let's say, where no p wave is detected. अब जहां p wave आ ही नहीं सकती वहां ये अर्लीस्ट अराइवल की बात कैसे कर रहे हैं, बराबर है। what is the basic definition of p wave shadow zone? in that particular zone no p wave is detected. ओके अब p wave वहां आ ही नहीं सकती, ओके तो p के आई के पी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। आ गया मतलब वो तो कोर ओर में जा रहा है, ठीक है। पी 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 ये भी नहीं आ सकता क्योंकि कोई भी पी वेव वहां आ ही नहीं सकती, तो ये भी नहीं आ सकता। तो बचा क्या? पी डिफरेंट। तो ये पी डी डाई डबल एफ हमने इसको डिफाइन किया था, पी वेव इज डिफ्रैक्टेड। ओके तो ये जो आपका डायग्राम था इसमें होगा क्या, जो भी पी वेव है ये आएगी और ऐसे डिफ्रैक्ट होगी, तो ये वेव सारी इधर आएगी और ये जो पर्टिकुलर जोन है इन दिस जोन, ओके नो पी वेव इज डिटेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर, तो सारी वेव ये इधर आ जाएगी डिफ्रैक्ट होके। तो ये जो बाउंड्री रहेगी वो कौन सी रहेगी? डिफ्रैक्टेड पी वेव रहेगी। ओके तो सबसे पहले आने वाली कौन सी बन गई? यही बन गई, और इस पर्टिकुलर जोन में तो एक भी नहीं आएगी। सो अर्लीस्ट जो कि बाउंड्री पे रहेगी वो कौन सी रहेगी? पी डी आई डबल एफ। क्लियर? पी डी आई डबल एफ को लिख के दिया था, क्या लिखा था हमने? P wave that has been diffracted around the outer core boundary. Clear? Therefore, answer is C. Clear? Okay. Now, next. Yes. Now, Sandeep is saying yes, sir. Okay. Yes, sir. किस लिए? पिछले वाले क्वेश्चन के लिए? Okay. Which one of the following seismic phase is observable in P wave shadow zone? अब मुझे रितेश इज सेइंग बी। PMP, M का मतलब क्या है? When we are using this M, small m, Ritesh? Reflection from mantle. Reflection from mantle, but कौन से वक्त यूज किया था? क्रस्ट याद आ रहा है? हाँ सर, सॉरी सर। क्रस्ट के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे जब पूरी पीवे शैडो जोन तक की बात कर रही है, मतलब बात तो इनर कोर तक जाएगी। ओके सिर्फ क्रस्ट की बात तो हो नहीं सकती।
तो ये तो एनी हाउ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर बाउंड्रीज से, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगी, तो पीसीएस भी पॉसिबल नहीं होगी। सी ऑब्जर्वेबल इन पी वेव शैडो जोन। ओके, मतलब शैडो जोन के बाउंड्री पे या आसपास हमको दिखनी चाहिए वेव। ओके, अब पी डी आई डबल एफ तो है नहीं, वो तो कॉमन नेम है डिफ्रैक्टेड वेव, किसी भी वेव को हम पी डी आई डबल एफ बोल सकते हैं जो डिफ्रैक्ट हो रही है। ओके, तो अगर पीएमपी होगी तो ये तो मेंटल से ही डिफ्रैक्ट हो गई। ओके, लेट्स से ये क्रस्ट था हमारा, ये मेंटल है। ओके, देन आउटर कोर, इनर कोर, देन पीसीएस रहेगा, वो क्या रहेगा, सी मतलब क्या हो गया, कोर मेंटल बाउंड्री, तो ये यहाँ से चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो शैडो जोन की तरफ तो आएगी नहीं। ओके, शैडो जोन की तरफ कौन सी वेव आएगी, जो सबसे पास होगी, बराबर, जो हर एक लेयर से पास होगी। अब सिर्फ पी की बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये पी में मतलब क्या हो गया, सिर्फ मेंटल में घूम रही है। ओके, दिस इज योर पी, दिस इज योर पी एम पी एंड दिस इज योर पी सी एस। तो जो वेव शैडो जोन की बाउंड्री पर आ सकती है ज्यादा से ज्यादा, वो कौन सी रहेगी, जो सारे लेयर से पास होगी, मींस पी के आई के पी इज द ओनली ऑप्शन। क्लियर? एनी डाउट? ओके, so option D. Next, question 37. Which one of the following is the ray path for the P wave that convert to S wave while passing through the solid inner core? Ketki is saying D. Ritesh is saying D. मानसी B. B क्यों लग रहा मानसी? सर डी आएगा, वो एस वेव कन्वर्ट हुआ है ना, तो डी डी। यहाँ गलती करना मतलब अपने हाथ के मार्क गवा दिए, बिकॉज ये बात हमने जब पढ़ते वक्त के एग्जाम्पल में भी ये इसका इक्वेशन, इसका पाथ बनाया था, फिर सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, 2 क्वेश्चन पहले, और फिर भी आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, पी वेव दैट कन्वर्ट टू एस वेव, अभी जो 2 क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया, यही तो क्वेश्चन था, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है अलग लैंग्वेज में। ओके, सो आंसर डी करेक्ट। व्हाइल पासिंग थ्रू इनर कोर, मतलब सिर्फ इनर कोर में पास होते वक्त एस में बदल गई, तो पहले मेंटल से जाएगी तो पी, देन आउटर कोर से जाएगी तो के, इनर कोर में एस में बदल गई तो इनर एस वेव इन इनर कोर आ जाएगा जे, देन फिर से वो आउटर कोर में आएगी पी वेव बन के के, देन पी वेव इन मेंटल पी, सो पी के जे के पी। ओके, करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। क्लियर? Then next, question number 34. अब मानसी, आपने जो आंसर दिया था उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पूछ रहा है।
The PKIKP phase denotes the passage of seismic wave in the earth as, क्या रहेगा, डी 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 डी, बहुत से लोग डी डी कर रहे हैं. ओके, सो कैपिटल P डिनोट्स P वेव इन मेंटल, सो P इन मेंटल D में है, करेक्ट. देन बात क्या अपना PKIKP, सो P वेव इन मेंटल है, P वेव इन आउटर कोर present, small I means reflected from inner core boundary, correct. Then again K, P wave in outer core present. Then again P means P wave in mantle and crust, correct. So PKIKP. So correct description for the given path is written in option D. Clear? Any doubt? Done. Okay, like this you need to study. Okay, first आपको concept को समझना है, then based on that concept try to solve different objective questions which was asked in previous examinations. ठीक है, तो आपको नॉलेज को सीखने के बाद अप्लाई कैसे करना है इसकी आइडिया आएगी, एंड देन एंड ओनली देन आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहोगे, करेक्ट. आई विल शेयर दिस पीडीएफ, नो इश्यूज. ढेर सारी पाथ यहाँ बनाई है, तो आप खुद बनाते जाओ और नाम देते जाओ. चेक करने के लिए ये डायग्राम आपके पास रहेगी. ओके, और सिंपली यू कैन गूगल, आपको ऐसी हजारों डायग्राम मिल जाएगी, नो इश्यूज. ओके, इसमें हमने वही चीजों को एक्सप्लेन किया विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर दिस टॉपिक. ओके, सारी चीजों को नहीं लिया, बट इन डिटेल क्लास ओके, सारी चीजों को शैडो जोन एक एक को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. ओके, एनी डाउट अप टू दिस इन दिस कंसेप्ट, इन दिस टॉपिक? ओके, तो वैसे तो आज न्यूमेरिकल करने थे पर काफी समय हो गया, तो आज नहीं करेंगे. ओके, सो टुमारो विल मीट विथ न्यूमेरिकल्स. ओके, सो बी रेडी विथ पेन एंड पेपर. अलग अलग न्यूमेरिकल्स कल करेंगे. ओके, तो हो सके तो थोड़ा रिवीजन कर लो, नहीं भी हुई, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, फॉर्मूले बताऊंगा, और कल के क्लास में ट्राई टू आप कैलकुलेशन, मतलब जिन्होंने सब कुछ नहीं पढ़ा है वो कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे. ठीक है, कि कैलकुलेट करने, जब आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यूज है, तो आप सिर्फ कैलकुलेट करके परफेक्ट आंसर निकाल पाओ, इस पे फोकस करेंगे. और जिनको सब पता है वो तो ईमानदारी से ट्राई करेंगे. ओके, सो टुमारो विल मीट विथ न्यूमेरिकल. ठीक है, तो ये जो डेमो फ्रेम किया गया है, ये अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग कंसेप्ट्स को बताने के लिए फ्रेम किया गया है. ठीक है, तो स्ट्रैटिग्राफी वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक काफी लोगों को लगता था. ठीक है, तो स्ट्रैटिग्राफी को आप थोड़ा अलग तरीके से पढ़ोगे, जैसे सर ने पढ़ाया, तो आपको आइडिया आएगी लर्न करने में, याद रखने में, स्टोरीज बना के, तो वो बहुत इजी हो जाता है. ठीक है, तो फिर वो बोरिंग नहीं लगेगा. ओके, आज का जो क्लास है ये लॉजिकल कंसेप्ट्स को कैसे टैकल कर सकते हैं इसके बारे में था. ठीक है, तो एक कंसेप्ट के थ्रू मैंने कोशिश की है. ठीक है, कल के क्लास में न्यूमेरिकल्स को कैसे टैकल करना है हम उस पर बात करेंगे. ठीक है, तो थ्रू दिस डेमो हम बताना चाहते हैं कि सारे कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है और हम कैसे करेंगे. ओके, so if you have any doubt, okay, you can ask me, else हम आज के लिए इतना ही करेंगे. We'll meet tomorrow with some numericals.